You are listening to 93.9 Dublin South FM. Broadcasting from the Dundrum Town Centre, this is Dublin South FM. So Bihar goes to polls today for its assembly elections, and there are 243 seats to be contested with some 1,300 candidates. It is an important state election because Bihar, as usual, is consequential to the national politics. It is the second largest state by population, and by area it is the 12th largest state of India. Although it is 14th largest in GDP, but the kind of economic situation the population witnesses is not the true representation of the size of GDP. Almost 58% of the population of Bihar now is below 25 years of age, and it actually gives a highest proportion of young people in any state in India. As we know, Bihar has a very rich history. In fact, it is the center of Indian civilization. It is the center of Buddhism. And not many people know, Vajji is supposed to be world's first republic, which dates back as much as 6th century BCE, that is before the birth of Gautam Buddha. So it has a very rich political history, cultural history. It has a significant role to play in the Hindu epic of Ramayana. We also see an important part Bihar played in the Indian national movement. Today, Bihar faces serious economic issues, social issues, developmental issues, and as far as democracy is concerned, there are many aberrations that the state of Bihar faces. Today, in our guest room, we have Ravindra Singh Shioran. He is editor of The Fourth Estate. He is a political expert and a journalist with 2 decades of experience in the field of politics, elections, laws, and policies. His focus is on critiquing Indian electoral processes and government actions. So like a true journalist, he does question the government policies and their action. He has done commentaries on pollution, regional politics, has a good following on X, formerly Twitter. It's a pleasure to welcome him, and today we will be discussing the real issues of Bihar on the eve of its elections. In the language of comfort, we have discussed the issues in Hindi, and the long form of the interview is available on the YouTube channel of Apna Radio 93.9 Dublin South FM. तो रविंद्र जी, ये बिहार इलेक्शन कब से है और इनकी क्या तारीख है? देखिए, बिहार इलेक्शन का तो तारीख आ गई। 6 तारीख को पहला चरण की वोटिंग है जी, और 11 तारीख को दूसरे चरण की। 2 चरणों में इस बार वोटिंग हो रही है और 14 तारीख को चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। अच्छा, ये पहली दफा है जब इतने कम चरणों में वोटिंग हो रही है। इसके पहले जो आखिरी बार लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। तो इस बार ये घट के 2 चरणों में हो गई है, 2 फेजेस में। जी, नतीजे 14 तारीख को आएंगे। इसका कोई कारण है? कारण तो कोई कारण नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, जब हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो अच्छी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू था वो शायद हम लोगों ने टैकल कर लिया है और तैयारियां बड़ी अच्छी करी हैं, तो इसलिए हम लोग 2 फेज में इलेक्शन कर रहे हैं। हालांकि इसको एक पॉलिटिकल इशू भी बनाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि इस बार 2 फेज में है, अगली बार हम लोग एक ही फेज में इलेक्शन करवा देंगे अगर एनडीए की सरकार बनी तो बड़े सवाल खड़े हुए कि भाई आप कौन है, हु आर यू इलेक्शन कराने वाले? वो तो चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन का काम भी अब क्या बीजेपी की सरकार ने या गृह मंत्रालय ने ले लिया है, तो इस पे एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी इलेक्शंस में। एक रैली में उन्होंने बोल दिया था जी। लेकिन ये बात है कि ज्ञानेश कुमार का कहना यही था कि इस बार 2 फेज में इलेक्शन होगा और 14 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। जी, लेकिन चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी भूमिका भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। इसका क्या चुनाव पे सीधा असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अपनी साख जो है, वो साख का सवाल है। उन्होंने तो अपनी छवि बहुत खराब कर ही ली है, और इस इलेक्शन से नहीं है बल्कि हम तो 2024 और उसके पहले से भी देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले से इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है बहुत ही खराब है। और
निष्पक्षता उसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत ही एम्बिग्विटी के साथ इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। आज तक देखिए इतने सारे चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, इतने सारे इलेक्शन कमिश्नर्स को भी देखा है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी छवि बनाई है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को कोई सवालों के जवाब नहीं देते हैं। ज्ञानेश कुमार जब से आए हैं तब से तो लगातार वो कंट्रोवर्सीज में हैं, SIR का इशू हो या फिर बिहार के चुनाव से जुड़े जो भी प्रश्न हो उनका कोई जवाब देते नहीं है। पिछले जो राजीव कुमार थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन पर भी बहुत सवाल खड़े हुए। उन्होंने भी जो काम किया वो बिल्कुल इस तरह का था कि वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं, एक रंग का इलेक्शन कमीशन हो गया है और एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए वो काम करते हुए उस वक्त भी दिखाई दिए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। उस वक्त जो प्रधानमंत्री के भाषण थे, जो बयान थे, उन बयानों का उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और उनको नोटिस तक नहीं भेजा। और वही स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है कि अब जो राजीव कुमार हैं या अभी जो ज्ञानेश कुमार हैं वो भी काम उसी तरीके का, उसी तर्ज पर करते हुए दिख रहे हैं। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आपने जरूर शायद ध्यान दिया होगा कि एक कंट्रोवर्सी हो गई है लल्लन सिंह और अनंत सिंह के इलाके में, मोकामा का जो विधानसभा क्षेत्र है, पटना जिले में पड़ता है वो। उस जिले में एक कंट्रोवर्सी जो हुई है और वहाँ एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई, तो उसके बावजूद भी अभी तक नोटिस नहीं भेजा गया अनंत सिंह को। अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उस व्यक्ति को नोटिस नहीं भेजा गया। उन जो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह हैं जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई FIR उनके ऊपर, हालांकि खबर तो आई है कि FIR दर्ज हुई है, लेकिन वो FIR किन सेक्शंस के तहत दर्ज हुई है, उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद असंवैधानिक बयान है। एक व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेके देश का मंत्री बनता है, उस व्यक्ति की तरफ से ऐसा बयान आना कि भाई आप के लोग जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो हमको वोट डालने वाले नहीं हैं, उनको वोट डालने मत जाने देना और उनको अपने घरों में बंद कर देना। अगर वो बहुत हाथ पैर जोड़ें तो आप उनको फिर अलाउ कर देना जाने के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो लोग वोट हमको ही दें। इस तरह का बयान उन्होंने दिया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक बयान है और चुनाव आयोग को वहां पर एक्ट करने की जरूरत थी। अभी तक चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। एक नोटिस भेजा है, जिस तरह की खबरें हैं, नोटिस हमने देखा नहीं है क्योंकि वो सार्वजनिक हुआ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उनको नोटिस भेजा गया है, 24 आवर्स में उनसे जवाब मांगा गया है। तो अब वो नोटिस आएगा। FIR की भी चर्चा है कि FIR हुई है, पर FIR की कॉपी हम लोगों ने देखी नहीं है, ना सार्वजनिक की गई है। तो जब तक वो देख ना लेंगे तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक औपचारिकता ज्यादा दिखती है कि बस एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग अब भरोसा नहीं रहा लोगों को इलेक्शन कमीशन पे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में आज की स्थिति में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शरद जी, तो ये बड़ी खतरनाक बात है और देश की राजनीति के लिए और देश के संविधान अगर खतरे में है तो जनता का अगर भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा है लेकिन संविधान लागू करने में भरोसा नहीं है। और खास तौर से बिहार, थोड़ा सा आपसे मेरा विचार अलग है। संविधान में सबका भरोसा है जी, वही संवैधानिक संस्थानों में सबका भरोसा है, लेकिन जो लोग उनको चला रहे हैं उन पर भरोसा टूट रहा है लोगों का। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार और उनके पहले राजीव कुमार थे, ये लोग बहुत ज्यादा पार्टीजान लोग थे और ये किसी का पक्षपात करते हुए साफ तौर पर हम लोगों ने इनको देखा। देखिए क्यों, उसका रीजन अब क्या हो गया है कि जो सिलेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन की कमेटी बनाई जाती है वो एक तरफा हो गई है। उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं और एक मंत्री होते हैं जिनको PM नियुक्त करते हैं और एक नेता प्रतिपक्ष। अब जाहिर है मेजोरिटी जो हो गई है, जब उसका बेस ही ऐसा बन गया है। पहले क्या होता था, इस कमेटी में 3 सदस्य होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह अब उसमें ले लिया है एक मंत्री को। तो सरकार का मेजोरिटी उसमें हो गई है, वो जिसको चाहते हैं उसको भर्ती करते हैं। इस वजह से वो संवैधानिक संस्थान पर जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति फिर अपने जिन्होंने उनकी नियुक्ति की है उनके हितों को साधने की कोशिश करता हुआ दिखता है। तो संविधान में लोगों का खूब आस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्थान के जो इरोजन जिस तरीके से हो रहा है और ऐसे लोग जो बैठ जाते हैं उनकी वजह से जो छवि साख इलेक्शन कमीशन की खराब हुई है वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और विपक्ष तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष की बातों को सुना ही नहीं जा रहा है, पक्ष जो इशू रेज करता है उनका रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं और जनता जो सवाल अब और इस तरह देखिए। और दूसरी बात शरद जी क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि केवल इसमें 2 ही एंटिटीज हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज और एक इलेक्शन कमीशन। जबकि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बिना भी तो
बिना भी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। इलेक्शन कमीशन उसका सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज तो देखिए आती जाती रहती हैं। 1980 के पहले तो बीजेपी नहीं थी, एक आरजेडी नहीं थी जी, जेडीयू नहीं थी, लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई। इनके पहले भी देश लोकतंत्र था, इनके बाद भी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र जनता के लिए होता है। चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी देश की जनता के लिए है, उनकी पहली जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है जी। लेकिन ये लोग इस तरीके से इस पूरे नैरेटिव को चलाते हैं कि ये लोग इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मामला है, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें कोई है तो वो इस देश का मतदाता है, इस देश का संविधान है जी। तो इसमें एक और पहलू जुड़ गया है। मैं ये द इकोनॉमिस्ट की एक 2004 की रिपोर्ट देख रहा था और उस पत्रिका में लिखा हुआ है कि बिहार भारत की सबसे बुरी स्थिति का पर्यायवाची शब्द बन गया है और यहाँ पे व्यापक गरीबी है, भ्रष्ट राजनेता हैं और माफिया और राजनेता में कोई अंतर नहीं है और इन दोनों में वो एक जाति आधारित व्यवस्था भी बन गई है और ये जो पूरा समीकरण बन गया है बिहार, इसका एक जीता जागता एक स्वरूप है। तो अब उसमें ये इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी जुड़ गई है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ शरद जी, जो हमने पहले जवाब दिया कि चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल पक्षपाती दिख रहा है, विजिबली पक्षपाती है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट किया, यहाँ पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन थी उसमें लोगों के नाम काटे, वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं रहा। उसके बाद वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो अभी भी लंबित है, उस पर कोई फैसला अंतिम नहीं आया है। लेकिन एक आप जानते ही हैं कि एक जजमेंट के आने से पहले कई बार कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। उन ऑर्डर्स पर भी हमने देखा कि हीला हवाली करते हुए इलेक्शन कमीशन काम करता हुआ दिखाई दिया। चुनाव आयोग स्पष्टता से काम नहीं कर रहा था। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में अब इन्होंने कहा है कि लागू करेंगे और उसके लिए पहले से ही तमिलनाडु और जो बंगाल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन विपक्ष के लिए तो एक तरफ से आंख मूंद के बैठा हुआ है और ये भरोसा लोगों का इसकी वजह से घटता जा रहा है। वही स्थिति बिहार में भी है। अब बिहार में अगर प्रोएक्टिव इलेक्शन कमीशन वहां पर हो, अब देखिए 40-40 और 70-70 गाड़ियां अपने साथ लेके वहां पर प्रचार कर रहे हैं लोग। हमने कल रिपोर्ट्स देखी कि लल्लन सिंह जो है वो 70 गाड़ियां लेके, केंद्रीय मंत्री 70 गाड़ियां लेके प्रचार कर रहे हैं, 40 गाड़ियां लेके अनंत सिंह प्रचार कर रहे हैं। ये उन्होंने खुद बोली है बात मोकामा में। तो 70 गाड़ियां 40 गाड़ियां लेके कोई प्रचार कर रहा है और चुनाव आयोग उसको नोटिस नहीं भेज रहा। चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, देखिए 121 ऑब्जर्वर्स लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, जिनका जनरल ऑब्जर्वर्स, 35 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाए और 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स लगाए। तो इनको क्या वहां पर लहराती हुई गन्स जो है वो नहीं दिखाई दे रही, इनको 70 गाड़ियों का काफिला दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप जाहिर है ये सवाल पूछेंगे कि भाई चुनाव आयोग कहाँ है, इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है, या एक तरफ उन्होंने आंख मूंद ली है और केवल विपक्ष क्या कर रहा है उस पर उनकी पूरी नजर है। तो ये बिल्कुल वही स्थिति है आज बिहार में और उसी वजह से ये सारे सवाल शरद जी खड़े हो रहे हैं जी। तो ये जो बिहार में आज स्थिति दिख रही है ये अन्य राज्यों में भी होती है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए या हरियाणा में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ गाड़ियाँ के काफिले चल रहे हैं और भ्रष्टाचार का पूरा रूप दिखता है इन चुनावों में। तो ये बिहार अलग है क्या किन्हीं और राज्यों से? देखिए बिहार बिल्कुल अलग है, लेकिन ये कहना कि बाकी जगह पर गाड़ियां कम दौड़ती हैं ये थोड़ा सा गलत होगा। इलेक्शंस में पैसा बहुत यूज होता है और वो केवल एक बीजेपी करती है ये भी नहीं कह सकते, वो हर पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना खूब पैसा यूज करती हैं। लेकिन चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो किस पर कार्रवाई करे। अब कल की एक रिपोर्ट है, मैं बताऊं आपको, उसमें बताया गया है कि करीब 109 करोड़ रुपए कैश और काइंड पुलिस जो है अलग अलग एजेंसीज ने पकड़ा है बिहार चुनाव में। अब कैश उसमें से करीब 10 करोड़ रुपए कैश है और उसमें लीकर है करीब 47-48 करोड़ रुपीस की लीकर पकड़ी गई है, कुछ ड्रग्स पकड़े गए हैं और कुछ दूसरा सामान है। इस तरह मिला के 100 करोड़ के ऊपर का
कैश और काइंड सीज किया। तो जब इतना भारी भरकम अमाउंट सीज किया जा रहा है तो सवाल तो ये उठेगा ना, वो है किसका पैसा? जी वो किसी नेता का ही तो होगा ना, किसी कैंडिडेट का ही तो पैसा होगा। तो जब किसी कैंडिडेट का है, किसी नेता का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, जी तो उनका नामांकन रद्द क्यों नहीं हो रहा? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर इतना पैसा पकड़ रहे हो तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कह सकते हैं इसको? और ये किसका पकड़ा गया है? कि सत्ता पक्ष का पकड़ा गया है, विपक्ष का पकड़ा गया है, किसी कारोबारी का पकड़ा गया है, कोई किनका पैसा है? ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन अगर जाहिर नहीं करेगा तो फिर सवाल तो उठेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन काम ठीक करता हुआ दिख नहीं रहा है। ये स्थिति आज की हो गई है शरद जी। और ये बिहार तो ड्राई स्टेट है, तो जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मौजूदा सरकार है, उसके परव्यू में भी ये आता है कि ये शराब कैसे पकड़ी गई प्रदेश के अंदर। देखिए अभी तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी ताकत है और प्रशासन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, सरकार के पास इस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। प्रशासन जो है वो सारा इलेक्शन कमीशन के मातहत काम करता है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग भी तो ये जवाब देगा ना कि अगर ये तो सीजर जो है, शराब का सीजर तो इलीगल तो है ही है, लेकिन उसके प्रोहिबिशन के भी खिलाफ है, उनका जो अपना कानून है उसके भी खिलाफ है ना वो तो। जी। तो वो इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि भाई इतना आसानी से अगर पैसा आ रहा है, जाहिर है लीकर अगर कहीं से आ रहा है, शराब आ रही है तो दूसरे स्टेट से आ रही है। इसका मतलब आपने जो बॉर्डर्स पर तैनाती की है, आपकी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वो काम ठीक से कर नहीं पा रही है। तो इलेक्शन कमीशन का ये जबरदस्त टोटल फेलियर है शरद जी। तो उसी पे ही अगला मुद्दा ये भी आ रहा है कि एडीआर की रिपोर्ट है कि फेज़ 1 में तमाम कैंडिडेट्स हैं, लगभग 26% फेज़ 2 में और 27% फेज़ 1 में उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये बार बार 2004 की द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि वो बात जो उन्होंने पाई थी वो अभी भी 20 साल के बाद अभी भी वैलिड है, सही है। बिल्कुल वही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी और खराब हुई है सिचुएशन जो है वो और खराब हुई है। जो एडीआर की रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, उसमें आपने 415 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल केसेस हैं जिनके ऊपर, और 341 कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो सीरियस क्रिमिनल केसेस। हाँ, ये सीरियस क्रिमिनल केसेस के नंबर्स हैं। हाँ जी। और 562 लोग करोड़पति हैं, 43%, और 3.44 करोड़ एवरेज एसेट है वहां पर कैंडिडेट्स की। तो जो बिहार आज देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार की है जी, हालांकि बढ़ी है पिछले सालों के मुकाबले में बढ़ी है, लेकिन बावजूद उसके सबसे निचले पायदान पर है बिहार। और उस बिहार में जो कि पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है, उस बिहार में अगर करोड़पति उम्मीदवार हैं 43% एसेट्स जिन्होंने अपनी डिक्लेयर की है, और एवरेज एसेट जो है 3.44 करोड़ है। तो आप देखिए कितना ज्यादा धनबल का उपयोग उसमें हो रहा है। जितने जो बाहुबली हैं या गुंडे हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और इसमें कोई राजनीतिक दल कम नहीं है जी। इसमें कम से कम करोड़पति वाली जो श्रेणी है उसमें तो हम लोग एक मान सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीएम या जो लेफ्ट ब्लॉक है, वो लोग इस बारे में शायद थोड़े से सचेत रहे होंगे, उन्होंने कम लोगों को दिया होगा टिकटें। लेकिन बाकी तो A to Z हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस हमाम में सब नंगे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने करोड़पतियों को, बाहुबलियों को टिकटें यहाँ पर दी हैं। और ये परंपरा आज से नहीं चल रही, ये पुराने समय से चल रही है, और अब उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और पहले थोड़ा बहुत एक जो लाज शर्म होती थी वो हम लोग देखते थे, लेकिन अब तो इस काम को बिल्कुल खुलेआम किया जा रहा है, और किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को अब लगता है कि कोई शर्म नहीं रही। एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाते हैं लेकिन है सब एक जैसे जी। तो इस बार कौन कौन सी पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव के मैदान में हैं? देखिए वही जो परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसके साथ है, और उनका अलायंस, और जो पार्टियां हैं उनके साथ है सीपीएम लेफ्ट ब्लॉक के साथ उनका अलायंस है, और एक है वीआईपी पार्टी जिसको बोलते हैं, वो है मुकेश सहनी की पार्टी, वो मल्ला कम्युनिटी जो है, निषाद कम्युनिटी, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक ब्लॉक है जी। दूसरा ब्लॉक जो है वो है जेडीयू और बीजेपी का, जिसमें जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और बीजेपी तो है ही, आप जानते हैं। उसके अलावा 3 और पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ हैं, एक है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एक है चिराग पासवान की लोजपा, और
और एक है जीतन राम मांझी की हम पार्टी। तो ये 2 मेन ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। जन स्वराज जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर की, वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन पहला उनका इलेक्शन है तो कोई बहुत खास उनका इम्पैक्ट होगा उसकी संभावना नहीं है। और उसके अलावा जो ये अपना लोजपा का एक हिस्सा जो था वो भी चुनाव लड़ रहा है, जो इसके पहले मंत्री थे पशुपति राम पारस, वो भी चुनाव मैदान में है। जनशक्ति जनता दल जो बनी है आरजेडी से अलग होके, तेज प्रताप यादव की जो इनके भाई हैं तेजस्वी यादव के, वो भी चुनाव में है, लेकिन उनका कोई खास ज्यादा असर हो ऐसा नहीं है। कुछ सीटों पर बीएसपी भी चुनाव मैदान में है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा असर डालेगी ऐसा नहीं है। तो मुख्य जो मुकाबला है वो इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, सीधा आमने सामने का मुकाबला है, और तीसरा कोई फ्रंट इस बार नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ही समझिए 85% वोट जो है इन दोनों ब्लॉक्स में ही बटेगा। अच्छा, और इनके आपस में मुद्दे कितने एक जैसे हैं या कितने विभिन्न हैं इनके मुद्दे? देखिए, मुद्दों पर तो बात जो है वो करना ही नहीं चाह रहे ना। ये आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो चाहती है कि मुद्दों पर बात करोगे तो जाहिर है 20 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा, और वो चाहते नहीं है मुद्दों पर बात करना। लेकिन जो मैनिफेस्टो के अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो तो देखिए एक जैसा ही है मोटा मोटी। वो महिलाओं को पैसा देना, रोजगार, शिक्षा, ये उसमें तो ज्यादा अंतर नहीं है किसानों के लिए। लेकिन प्रश्न तो ये खड़े होते हैं कि 20 साल से जो सरकार सत्ता में है वो सरकार कितना काम कर पाई, उसका रिपोर्ट कार्ड लेने का जो समय है वो कब आएगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है एनडीए की तरफ से जिसमें उन्होंने बताया हो कि उन्होंने 20 साल में क्या किया। मुख्यमंत्री की एक बार भी प्रेस से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी सेहत पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये मुख्य, और जाति का जो है अब जो बयानबाजी एक दूसरे पर हो रही है, इन मुद्दों को मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। और आरजेडी है वो कोशिश कर रही है, महागठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि वो लोग बेरोजगारी, शिक्षा और जो 20 साल की सत्ता के खिलाफ एक माहौल है, उन मुद्दों को लेकर के इलेक्शंस में जाएं। और इन दोनों के बीच में मुख्य लड़ाई यही है। एनडीए कोशिश यही कर रहा है कि मुख्य मुद्दों से हटाया जाए। इसलिए आप देख रहे होंगे हर तरह के बयान हम लोग सुनने को आ रहे हैं, और जो मीडिया है वो भी उन्हीं बयानों के आधार पर रोज डिबेट करती है, उन्हीं बयानों को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, ताकि मुख्य मुद्दे जो हैं, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो मुख्य धारा के सवाल ना बने। जी। और असली में बिहार के मुद्दे क्या हैं? देखिए, असली मुद्दे तो यही हैं कि पलायन बहुत बड़े लेवल पर वहां पर होता है। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, दूसरा बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, महिलाओं की स्थिति जो है, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो बिहार में आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ये सब चीजें जो है मिलजुल कर, आज भी आप देखेंगे शरद जी तो देश कि किसी भी कोने में आप चले जाएं, आप अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के मैप पर आप अपनी उंगली लगा दीजिए और आप पाएंगे कि वहां पर आपको मजदूर जो मिलेगा वो बिहार का मिलेगा। हर जगह पर ये स्थिति क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। और इंडस्ट्रीज जहां पर नहीं होंगी वहां पर इश्यूज तो देखिए क्रिएट होना ही है। ना इंडस्ट्रीज वहां पर ठीक से काम कर पा रही है, ना वहां पर रोजगार का कोई दूसरा साधन है, उस वजह से पलायन होता है। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस खड़े नहीं किए गए, स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं है, जिनकी वजह से स्कूल की शिक्षा पाके बच्चों को पढ़ाई के लिए दिल्ली या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। जी। वापस आने की कोई साधन नहीं है। वापस आएंगे तो क्या करेंगे बच्चे पढ़ लिखने के बाद? तो मजबूरी में उनको वहीं अपने जहां भी पढ़ने लिखने गए हैं वहीं रहना पड़ेगा। वापस आएंगे तो उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, और मजदूर जो कम पढ़े लिखे तबका है वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें एक ऐसा जंजाल बन गया है कि बिहार का व्यक्ति बहुत परेशानी की हालत में इस वक्त देखा जा सकता है। तो इस चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी? देखिए, चुनाव के बाद परिस्थितियां तो सरकार कुछ बदलेगी तो बात हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि ये सरकार तो अभी है नहीं, पुरानी है सरकार, आपको पता ही है। ये सरकार तो लंबे समय से काम कर ही रही है। तो अब ये सरकार कुछ बदल पाएगी तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन कोई कर देगी। लेकिन ये बात तो अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार तो अगले मुख्यमंत्री नहीं ही बनेंगे, क्योंकि बीजेपी तो नहीं बनाएगी, बीजेपी ने उनको फेस भी नहीं बनाया है। तो अगर उनकी सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार आने की बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया है, और उनकी जो पुरानी हम लोग देखते हैं जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज से तो अभी देखिए कुछ हुआ नहीं है। तो जाहिर है ये लोग
ये प्रश्न तो है कि 20 साल में जो आप काम करने का मौका था वो नहीं कर पाए, तो बहुत परिवर्तन अगले 5 बरस में भी कर पाएंगे, इस पर तो देखिए सवाल है ही। पर पूरी स्थिति तब स्पष्ट होगी जब नई सरकार सामने आएगी, उस सरकार का एजेंडा जब सामने आएगा, तब मुझे लगता है ज्यादा क्लियर हम लोग इस पर बता पाएंगे। शरद जी, अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो अपोजिशन में तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी और उनका गठबंधन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे 2 साल करीब, तो वही घूम के चुनाव अगर जीतते हैं तो उनसे भी क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम बिहार के परिवर्तन के लिए? देखिए, तेजस्वी अपनी जो उपलब्धियां हैं उसमें गिनाते हैं कि 17 महीने की जो उनकी सरकार थी उसमें उन्होंने रोजगार काफी पैदा किए, ये बात वो कहते हैं, और युवाओं के लिए उन्होंने काम किया। अपनी उपलब्धियों में वो ये बातें गिनवाते हैं, लेकिन साथ साथ वो जब ये बातें कहते हैं तो उनके ऊपर एक जंगल राज का तमगा भी चस्पा करने की कोशिश की जाती है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कि आपकी जो सरकार 15 साल थी तो उसमें अंधेरा युग था और लालटेन का युग था। तो ये सब चीजें तो देखिए हम लोग देख रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। तो और एक बात, दूसरी बात देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप जानते हैं कि संविधान में तो इस तरह का कोई पद है नहीं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था, लेकिन असली ताकत तो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। और 17 महीने कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्त होता नहीं है, पर वो ये बात कहते हैं कि 17 महीने भी उन्होंने खूब रोजगार लोगों को दिए, और अगर वो बनते हैं, मुख्यमंत्री बनाया जाता है पार्टी, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाती है जनता, तो वो उसी विषय पर नौकरियों को ज्यादा लेके आएंगे, पलायन को रोकना उनकी प्राथमिकता होगी, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन जो जातीय आधार है, सामाजिक आधार है, उस पर वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पाते हैं, और उनको उम्मीद भी यही है कि अगर जातीय समीकरण और से अगर उनको वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहा तो उनकी संभावना जीतने की काफी बढ़ जाएगी। अब प्रशांत किशोर जो नई पार्टी लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि जाति पे वोट नहीं देना चाहिए, हमको डेवलपमेंट पे वोट देना चाहिए। जाति पे वोट नहीं देना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, ये तो सारे लोग ही कहते हैं कि भाई जाति पे वोट ना दो, धर्म पे वोट ना दो जी, अपने पराये का भेद मत करो, पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दो। लेकिन बिहार में या देश में कहाँ ऐसा होता है? हम लोग तो शरद जी इतने सालों से चुनाव देख रहे हैं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, एक स्टेट हमको बता दो जहां पर जाति या धर्म के आधार पर वोट ना पड़ता हो। आज भी वही वोट पड़ता है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप सब वही पड़ता है वोट है। वही आप हरियाणा में करोगे तो जाट गैर जाट हो जाता है, राजस्थान में ठाकुर राजपूत हो जाता है, फिर आप पटेल नॉन पटेल हो जाता है, जब आप जाओगे गुजरात में मराठा नॉन मराठा हो जाएगा, महाराष्ट्र में रेड्डी नॉन रेड्डी कप्पू हो जाएगा, फिर आपका लिंगायत हो जाएगा कर्नाटक में। तो ये हर क्षेत्र में आप किसी में भी चले जाओ, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का स्टेट उठा लो, उसमें ये सब इश्यूज हैं। और ये सच्चाई है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज जब तक रहेंगी, जब तक इस देश में चुनाव होगा, जातियों को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है। कहते तो सब हैं, लेकिन करता तो कोई नहीं है ना। जो वोटर जो टिकटें दी हैं जन स्वराज पार्टी ने भी, उसमें भी आप देखेंगे तो अधिकांश टिकटें जनरल कास्ट को दी है। तो ये सब क्या है, उसी पार्टी को दे रहे हो ना, उसी कम्युनिटी को आप देना चाहते हो ना टिकटें, जिनका वर्चस्व है सोसाइटी में। तो वो जन स्वराज वाले बोलते कुछ हैं, लेकिन बोलते तो सब है ये बातें, पर होता तो नहीं है ना ऐसा। जी होता तो वही है जो जिससे वोट आपको मिले। वो तो विनेबिलिटी तो है ही है हर चुनाव में, वो चुनाव ही इसीलिए कहलाया जाता है। बाकी सब बात विनेबिलिटी, मनी पावर, मसल पावर ही है सच्चाई, बाकी सब हवा हवाई। तो आपको अगर 10 में से नंबर देने की बात हो तो इस चुनाव से परिवर्तन होगा, इसको आप कितने नंबर देंगे? देखिए, ये तो वही मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल थोड़ा सा इसलिए है कि थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा सरकार किसकी बनती है, सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसी के बाद हम लोग बता पाएंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी तक तो जिन सरकारों में, जिन प्रदेशों में सरकार बनी है बीजेपी की, उसमें कोई ज्यादा अंतर आया नहीं है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की भी सरकारें रही, उनमें भी कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी है या ऑपोजिशन की सरकार बनी है, वो सेंटर के साथ इसी फाइट में रहती है कि हम लोगों को हमारा जो टैक्सेस का पैसा है वो सरकार पैसा वापस देती नहीं है। तो परिवर्तन की बात तो देखिए सही तरीके से तो हम लोग तभी बता पाएंगे जब सरकार अस्तित्व में आएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या सरकार का आउटलुक है। उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अगला इंटरव्यू करना पड़ेगा शरद भाई हमको। हाँ बिल्कुल करेंगे, बेशक करेंगे। एक और इस चुनाव में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जेन जी की कोई भूमिका होगी। आपको दिख रहा है कोई बिहारी जेन जी? देखिए, जेन जी का मतलब यहाँ तो बेरोजगार है,
जो पढ़ा लिखा युवक है, जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, जो पलायन करने के लिए मजबूर है, वो जेन जी के श्रेणी में हम लोग उसको रख सकते हैं कि वो लोग परेशान हैं कि हम लोग अब क्या करें फ्यूचर में, क्योंकि हम लोगों को अपना शहर, अपना प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी जगह पे जाके नौकरी करनी पड़ रही है। वो लोग अट्रैक्ट हुए हैं, उसका एक बड़ा तबका अट्रैक्ट हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ, और वो लोग बहुत नाराज हैं या परेशान हैं इस पूरी व्यवस्था से कि उन लोगों को 20 साल 25 साल होने के बाद भी ये सरकार है, या 10-15 साल पहले की सरकार थी, उसके बाद भी ये उन लोगों को रोजगार, शिक्षा, कारोबार, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब से महरूम रखा गया है। तो वो लोग बेरोजगारी का इशू पर तेजस्वी के साथ देते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका इस इलेक्शन में यही होगी। अगर जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन अगर जातियों को तोड़ते हुए दिखेगा तो वो जनजी में यही दिखेगा कि वो लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खड़े होते हुए दिख सकते हैं। जी, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। तो जैसे पलायन हो जाता है और लोग बिहार अपना एड्रेस, निवास छोड़ के चले जाते हैं दूसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में, तो वो क्या वोटर लिस्ट में फिर भी बने होते हैं और वो इस चुनाव में फिर अपना भागीदारी कैसे दिखाएंगे अगर वो उनका एड्रेस चेंज हो गया तो? नहीं, देखिए, उसी के लिए तो ये पूरी एक्टिविटी की गई थी SIR की। चुनाव आयोग ने तो यही बोला कि जो लोग पलायन कर चुके हैं जी, उनका नाम काटा जाए, इसी के लिए पूरी प्रक्रिया है। तो जो लोग बिहार के स्थायी निवासी हैं, उन्होंने बिहार में वोट बनवाया है, लेकिन वो छोड़ के अगर बिहार चले गए और अगर दूसरी जगह उन्होंने वोट बनवा लिया है, फिर तो बात अलग है। नहीं तो वोट उनका वहां पर है जब तक कि कोई कहेगा नहीं काटने के लिए, या जब तक कि इलेक्शन कमीशन इस बात से सेटिस्फाई नहीं होगा कि वो लोग चले गए हैं, तब तक उनका वोट वहां बना हुआ है। तो दूसरा, ई वोटिंग की तो कोई प्रक्रिया अपने यहाँ पर है नहीं भारत में। वो आपको तो जो भी व्यक्ति है उसको खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा और जहां भी उसका वोट है उसको खुद कास्ट करना पड़ेगा। तो पलायन होने से वोट नहीं कटता है, पलायन होने के बाद इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फाई है तो वोट कट जाता है। तो वो लोगों को वोट डालने के लिए तो वापस लौटना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या ये है जो कल परसों में और चुनाव के फेज़ 1 और फेज़ 2 में अपने अपने अन्य राज्यों से रेलगाड़ी में, बसों में भर के वापस आएंगे और वो चुनाव में अपना वोट डालेंगे, ये उम्मीद करते हैं हम लोग। हाँ, उम्मीद करते हैं जी, तभी वोटिंग परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। चुनाव आयोग तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन कितने लोग आएंगे ये सवाल है। अब देश में देखिए, हमने तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहित परिणाम नहीं देखे ऐसे कि लोग वोट डालने के लिए अपनी जेब से किराया भाड़ा सब लगा के और अपना काम धंधा छोड़ के कई दिन का और आए। इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं रहती हैं। लोग बड़ी संख्या, और यही रीजन है ना, इसी वजह से तो वोटिंग परसेंटेज देखिए ना, अब सीमित है। कितने सालों से कोशिश करके भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। तो इस बार 60-65% वोटिंग होता है, हाँ, 70% तक चला जाए तो बड़ी बात होती है। तो इस बार भी 60-65 के आसपास ही उम्मीद करेंगे बिहार में। हाँ, देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पूरा कैंपेन करता है, स्वीप कैंपेन चलाता है, लोगों को जागरूक करता है, लेकिन कितने लोग वहां पर आ पाए, उनको कितने लोग वापस लौट सकते हैं। जितने एग्रेसिवली कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, उतना ही वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही वोटर्स को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी करता है। लेकिन देखिए, इस सब के बाद भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके चलते पलायन उनमें बड़ा इशू है। फिर स्टूडेंट्स होते हैं, फिर नौकरी पेशा लोग होते हैं कि वो लोग लौट के वापस आते हैं या उनकी भागीदारी अभी तक हो नहीं पाती है। तो वो इश्यू तो है, वो चैलेंज तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज भी है, पहले भी था। तो क्योंकि उनकी भागीदारी इस चुनाव में कम होगी या नहीं हो पाएगी, तो पलायन का मुद्दा फिर कौन उठाएगा? पलायन का मुद्दा तो जो परिवार हैं यहाँ पर वो उठाते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं वही लोग, वही वोट। देखिए, इशू को रेज करना एक है और इशू पर वोट पड़ना एक है जी। अब जो लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अगर अपने मामलों, अपने मसलों के लिए संजीदा हैं, तो फिर जाहिर है संजीदा होकर अपने मुद्दों पर वोट डालें। लेकिन ये संजीदगी तो दिखती है, वोट के समय पर गायब हो जाती है ना। वोट के समय, जैसे हमने बताया कि वोट तो जाति पे पड़ता है इस देश में जी, धर्म पे पड़ता है, मुद्दों पर कहाँ वोट पड़ता है। मुद्दों पर अगर वोट पड़ता तो आज इस देश की स्थिति में बहुत बदलाव हम लोग देख पाते। तो बिहार भी बिल्कुल देखिए, जो जाति की जकड़न है उसमें फंसा हुआ है, उसमें से निकल पाना बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोग निकल पाएंगे, बस यही है सवाल।
बाकी तो एक बड़ा जो वोट बैंक है वो तो जाति के आधार पर ही पड़ने वाला है, मुद्दे गौण हो जाते हैं। ये अभी जो 10,000 रुपए दिए हैं महिलाओं को, इस पे चुनाव का क्या नैरेटिव बदलने की कोशिश हुई है? देखिए, ये पूरी कवायद तो उसी के लिए की गई है। कि पूरी कवायद जो की गई है, इसके पीछे कारण तो यही है कि किसी तरीके से इसका बेनिफिट लिया जाए। और इसके पहले भी मध्य प्रदेश में हमने देखा, फिर महाराष्ट्र में देखा, अलग अलग अमाउंट जो मनी है वो डाला गया था जी। इस बार भी डाला गया है। तो उनमें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बेनिफिट मिला है बीजेपी को, तो हो सकता है कि यहाँ भी बेनिफिट मिले, क्योंकि पूरी कोशिश तो यही की गई है वो। और यहीं पर तो सवाल खड़ा होता है ना फिर चुनाव आयोग पे आके, कि इतना वोटों को एक किस्म से राजनीतिक रिश्वत दी जा रही है और चुनाव आयोग खामोश है उस पर। तो लेवल प्ले फील्ड तो हुई नहीं ना फिर, ये कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड हुई? ओपोजिशन तो दे नहीं सकता, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो दे सकती है। ये लोगों को समझ में आ रहा है, ये जो गड़बड़ी है ये लोगों को नजर आ रही है? लोगों को नजर आ रही है, लेकिन बात फिर वही है ना, इश्यूज तो सारे हैं शरद जी, लेकिन इश्यूज पर वोट तो पड़े। वोट तो जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं जाति के आधार पर। अगर इशू बेस्ड वोटिंग होगी कभी इस देश में, फिर तो आप देखेंगे कि बहुत सारा परिवर्तन हो ही जाएगा। ये तमाम इश्यूज हैं, हम लोग जो चर्चा तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वोट पड़ता है, वोटर जब बूथ पे जाता है, तो उसके जहन में क्या सवाल होते हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल देता है। अब इतनी लीकर पकड़ी गई है तो कहाँ गई है जी? अगर इतनी शराब पकड़ी जा रही है तो वो सारी तो पकड़ी नहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, वो कहाँ गई है? जाहिर मतदाताओं के पास ही पहुंच रही है। इलेक्शन कमीशन जिसको ट्रैप नहीं कर पाया। ये हम मुद्दों की बात है, तो ये भी तो एक बड़े इश्यूज है ना, जो कि कारपेट के नीचे से हम लोगों को दिखते नहीं है, पर वो भी इलेक्शन को शेप करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं जी। तो क्या वोट चोरी भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? वोट चोरी, बिल्कुल। वोट चोरी तो देखिए बड़ा इशू है ही है, और उसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं जो ओपोजिशन पार्टीज हैं। वो अपना बूथ लेवल पर जो एजेंट्स हैं या BLOs वगैरह उन्होंने बनाए हैं, वोटिंग लिस्ट की जिस तरह से पड़ताल की है, पहचान की है, वोटर्स को जो जागरूक कर रहे हैं, अपने जो कार्यकर्ता है उनको, तो वो एक बड़ा इशू तो है, नो डाउट। और उस इशू के चलते कांग्रेस पार्टी ने काफी अपनी एक जो छवि थी उसमें भी बदलाव आया है, वो थोड़े से पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है उनकी, तो वो एक बड़ा इशू तो है, नो डाउट। तो मेरा ये आखिरी सवाल होगा, फिर सवाल तो बहुत हैं, हम एक और राउंड कर लेंगे चुनाव के बाद तुरंत। मेरा एक और सवाल ये था कि अन्य राज्यों के लिए क्या सीख मिलने वाली है बिहार चुनाव से? देखिए, चुनाव तो शरद जी, हर चुनाव तो अलग है, हर प्रदेश की स्थितियां अलग हैं जी। बंगाल में चुनाव आने वाला है, हाँ, हर प्रदेश में अलग है, हर प्रदेश में अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन हर प्रदेश में है वो इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन की जो काम करने का तरीका है उससे बाकी जो राजनीतिक दल वो सीख सकते हैं, और वो सीखेंगे भी, उन्होंने सीखा भी है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु ने तो ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वो लोग जाएंगे, बंगाल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो लोग SIR के खिलाफ जाएंगे। तो उस पर और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अपना जो वोटिंग पैटर्न है उसको ज्यादा नजदीक से देखना पड़ेगा ओपोजिशन पार्टीज को। तो उनके लिए सीख तो मुख्य तौर पर यही है कि वो लोग इन चीजों पर बहुत गंभीरता से देखें और चुनाव आयोग को काम करने के लिए मजबूर करें, निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए उनको संघर्ष करना है। वो मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख है जी। और मेरा ये मानना है कि बिहार हमेशा से तो नहीं, कभी जो मुझे ऐसा हमने पढ़ा है कि बेस्ट गवर्न स्टेट हुआ करता था इंडिपेंडेंस के बाद हमारे, और अभी ये बीमारू स्टेट में आता है, और अभी भी इसमें परिस्थितियाँ बदली नहीं हैं ज़्यादा। इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव आखिर कर क्या रहा है। अगर चुनाव हो रहा है और लोग मतदान कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कि अगर परिस्थितियां बदल ही नहीं रही हैं, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना महिलाओं के लिए या पलायन के लिए, तो क्या ये सही में लोकतंत्र का मॉडल काम कर रहा है क्या भारत में? तो ये बड़े बड़े सवाल आते हैं, फिलोसफिकल सवाल हैं, कंसेप्चुअल सवाल हैं, और चैलेंजिंग सवाल हैं कि लोकतंत्र बिहार जैसे प्रदेश में परिवर्तन क्यों नहीं ला पाया। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये। हम लोग इनका जवाब जरूर खोजेंगे, और इलेक्शन के बाद और ज्यादा स्पष्टता से हम लोगों को मालूम पड़ेगा इन प्रश्नों के जवाब जी। बहुत अच्छा, तो आपसे फिर बात होगी, और इलेक्शन के बाद हम लोग इसका फिर से विश्लेषण करेंगे।
और उम्मीद यही करते हैं कि परिवर्तन हो, अच्छे के लिए परिवर्तन हो, और जो सही के मुद्दे हैं वो उस पे बिहार की जनता अपना मतदान करे, और नेता वही हो जो सही परिवर्तन लाए। पार्टी विशेष मतदान हमारे भारत में होता है, लेकिन मुद्दा विशेष मतदान ये हमारी जनता को सीखना चाहिए, और ये मेरी उम्मीद है। You are listening to 93.9 Dublin South FM. Broadcasting from the Dundrum Town Centre, this is Dublin South FM.